What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Sunday, 5th of April and tomorrow is Nifty's 1DT. And the markets continue to be thrown around based on the news. This is predominantly a news-driven market where the markets open with a gap up and then see an intraday sell-off, and the next day we open with a massive gap down and then we see an intraday monstrous rally. So this has been the story for the last 2-3 weeks, and even the last Tuesday markets made a low of 22,300, but the very next day on Wednesday we opened with a massive gap up of 600 points. But on Thursday, on the day of Sensex expiry, we opened with a massive gap down of 500 points, and in fact we broke that 22,300 levels का जो low था वो breach हो गया था. For the first 3 hours of the expiry, the markets actually stayed below this 22,300 levels. But around 12:30, that's when the monstrous rally starts, and Nifty rallied more than 600 points on an intraday basis. To talk about Sensex rallied more than 2,000 points on an expiry day, blasting all the OTM calls by 60 to 70 times. जो option 20-30 rupees पे trade कर रहा था, that ended up with 1,200-1,300 rupees. Definitely it was an option buyer's paradise. But the short wall, short gamma traders again received a harsh welcome for the fresh financial year. It was a very tough expiry if you were an options writer. And in spite of the 600-700 point Nifty ka rally on an intraday, the VIX didn't see any meaningful cool off. Even now we are trading at an elevated levels of 25, which means the markets are still anxious and the markets have no clue about this ongoing geopolitical tension. किसी को पता नहीं कि क्या escalation होने वाला है या de-escalation होने वाला है, and इसके बीच ट्रंप ने constantly कुछ ना कुछ ट्वीट डाल रहा है. कभी बात करता है पीस टॉक्स की, कभी बात करता है अल्टीमेटम्स की, एंड लास्ट जो उसका ट्वीट है, लास्ट जो उसका अनाउंसमेंट है, ही हैज़ गिवन सम सॉर्ट ऑफ एन अल्टीमेटम. एक 48 आवर का डेडलाइन दिया है ईरान को, एंड what's going to happen? Nobody knows, not even Trump at this point of time. So we have got around 530 rupees of straddle premium on Nifty, which is not a lot to be honest. And Gift Nifty is showing another 250 points lower. So we saw an intraday rally of almost 600 points, and that must have triggered a lot of positional longs. But again, those positional longs will be taken by surprise when Nifty is going to open 200 points lower on Monday morning. So let's get to the terminal and let's see कल के लिए क्या ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं. All right. So daily chart पे the markets are definitely in a downtrend, but the sharp gap ups and gap downs and the sharp pullbacks are not making the lives of the trend followers any easy. अगर आपने यहाँ पे कहीं पे आपका एक short position trigger हो चुका था and then you're just riding your profits, then that's a completely different thing. But people who are trying to capture the moves here, they're getting chopped left, right and center. And people who sell options delta neutrally या non-directionally जो पोजिशनल ऑप्शन सेल करते हैं, those people are having the hardest time of their lives because markets में प्रीमियम ज़रूर ज़्यादा है, but the markets are not having any clear cut direction, and at the same time every day some new story, some new news, some new tweet, some new announcement from Trump, which is making the traders super anxious, and the markets are also at a highest level of anxiety in the recent times because आप देख सकते हैं कि 2200 से लेके 23,000 तक ऑलमोस्ट 600, 700, 800 पॉइंट्स का रैली आने के बावजूद भी विक्स ड्रॉप नहीं हो रहा है. विक्स अभी भी 25 लेवल्स के आसपास है, एंड पीपल हु एक्चुअली ट्रेडेड कोविड, दे नो how these wicks behave. तो अगर 22,000 अगर ब्रीच हो जाता है तो then there is a very high possibility that विक suddenly 30 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, एंड वहाँ से एक शार्प बाउंस बैक आएगा तो ही विक्स कूल ऑफ देखने को मिलेगा. इफ़ यू रिमेंबर कोविड पे कैसा था, 25-30 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड सडनली व्हेन निफ्टी एक्चुअली ब्रोक 10,000 एंड 9,000 लेवल्स, सडनली विक्स शॉट अप टू 80 लेवल्स, एंड वहाँ से बॉटम बना के एक शार्प रैली देखने को मिला. इमीडिएटली विक्स एक वी शेप काइंड ऑफ अ रिकवरी विक्स भी दिखाया. बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट. इट्स नॉट गोना बी अ शार्प वी शेप रिकवरी. तो probably we might be looking at an extended period of bear markets, and that's what all the things are pointing towards. AI led layoffs ho, this war situation ho, probably the potential energy crisis ho, the global geopolitical tension ho, सारे चीज एक साथ आए हैं, and probably this is the cycle that usually market throws around. हमेशा क्या होता है, बुल मार्केट के बाद एक 6 से 7 साल के बाद जनरली एक बेयर मार्केट या एक करेक्शन देखने को ज़रूर मिलता है. इफ़ यू नोटिस 2000 में .com बबल था,
2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, अगेन 2014-2016 के बीच में एक बेयर मार्केट था, एंड देन अगेन 2020 में कोविड का क्रैश था. नाउ प्रोबेबली आई थिंक इट्स द ड्यू टाइम 2026-2027, 6 साल ऑलरेडी होने को आया है, एंड देयर इज अ बेयर मार्केट दैट इज पेंडिंग, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी एंटरिंग इनटू अ बेयर मार्केट. अगर एंटर नहीं करते हैं मार्केट कहीं से 22,000 लेवल्स के आसपास से मगर बाउंस बैक कर लेता है, वेल एंड गुड, बट investors need to be bracing themselves for some sort of elongated periods of no returns or even negative returns. तो lower time frame पे बात करें, you can notice that the markets actually stayed within this low. ये low जो एक्चुअली फॉर्म हुआ था 22,300 लेवल्स, उसके नीचे ऑलमोस्ट 3 आवर से भी ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड व्हेन एवरीबडी थॉट दैट ओ यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न बना चुका है एंड द मार्केट्स विल मोस्टली बी स्टेइंग विद इन 22,300 लेवल्स, दैट्स व्हेन द रैली स्टार्टेड. आप देख सकते हैं कि 22,200 से लेके 22,800 तक ऑलमोस्ट एक 600 पॉइंट का एक यूनिडायरेक्शनल रैली देखने को मिला. एंड यस, यूनिडायरेक्शनल रैली जरूर देखने को मिला, बट एट द सेम टाइम लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे द 1 मिनट पुल बैक्स वर ब्रूटल. ये जो 1 मिनट 2 मिनट का जो कैंडल्स है, यहाँ पे जो पुल बैक्स आ रहे हैं, ऑल दिस पुल बैक्स वर ऑल्सो स्पाइकिंग द पुट्स मैसिवली. यहाँ पे पुट्स ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो ही रहे थे, स्पेशली ऑन द सेंसेक्स एक्सपायरी वाला जो ऑप्शंस, एंड द day was not at all easy. I started my fresh financial year with a 0.2% loss. 0.2% मैंने भी loss लिया है, but considering the moves that the markets made, 0.2% loss I would happily take on any given day. So tomorrow will be Nifty's 1DT, and पहले मैं synthetic future हटा देता हूँ, and you can notice that the straddle pricing is somewhere around 530, and I don't see any reason why it should be opening below 450. अगर 450 के नीचे अगर straddle open हो जाता है, then it absolutely makes no sense to be even shorting the options. अगर आप डायरेक्शनली भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, then probably go with debit spreads, and options को थोड़ा लॉन्ग ऑप्शंस की तरफ से हमको ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट्स 500, 600, 700 पॉइंट्स ऐसे आराम से मूव कर रहा है ऑन एन इंट्राडे बेसिस, एंड देन वी आर सीइंग 500 रुपीज प्रीमियम फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज, बिकॉज ये जो प्रीमियम था दिस वाज ऑन थर्सडे नाइट, राइट. उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, टोटल 5 दिन, एंड स्पेशली इन अ टमल्टस टाइम लाइक दिस व्हेन वी हैव सो मच ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, दिस इज प्रैक्टिकली अंडर प्राइसिंग ऑफ रिस्क. सो कल अगेन 250-300 पॉइंट्स मार्केट्स गैप डाउन खुल रहा है. ऑफ कोर्स ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे कुछ पैसे नहीं मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन, बिकॉज आईवी ज़्यादा है, एंड वी नीड 500-600 पॉइंट प्लस और माइनस ओपन. एंड ये जो 500-600 पॉइंट्स का जो ओपन होने वाला है, गैप अप या गैप डाउन, ये हर रोज़ नहीं मिलने वाला है, बट डेफिनेटली हर हफ्ते में एक बार तो जरूर आ रहा है. तो ऑप्शन राइटर्स माइट बी मेकिंग मनी 3 out of 5 days, बट अगेन द रिमेनिंग ऑफ द 2 days दे विल बी टेकिंग ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ दिस मैसिव मूव्स. सो अगर कल स्ट्रैडल 500 के नीचे खुलता है, डोंट इवन ट्राई टचिंग इट. अगर 500 के ऊपर खुलता है, देन प्रॉब्ली यू कैन फॉर्म सम रेंज ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड ट्राई टू प्ले दैट रेंज. बट अगेन वो रेंज में भी ऑप्शन प्रीमियम्स को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इंट्राडे में ऐसे एराटिक बिहेवियर करने वाला है. यू वोंट बी सीइंग दिस काइंड ऑफ अ लीनियर डीके, एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट स्टॉप करता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 600 से लेके 650 को चला गया, एंड देन 550 पे आ गया, 550 से वापस 620 पे चला गया. सो 50-60 पॉइंट्स प्लस और माइनस स्ट्रैडल कंटिन्यूसली स्पाइक करता रहता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली विल बी सीइंग अ क्लोज ऑफ 400 रुपीज टुमारो एज वेल. तो 400 रुपीज के लिए कल अगर क्लोज मिलता है, देन दैट वुड गिव समवेयर अराउंड 200 पॉइंट्स ऑफ ओवरनाइट रिस्क एंड 200 पॉइंट्स फॉर द एक्सपायरी डे रिस्क. सो अगर 500 के आसपास ओपन करता है, yes there is a potential of 100 पॉइंट्स ऑफ डीके, 100 पॉइंट्स ऑफ क्रश, बट वो 100 पॉइंट्स कैप्चर करना इतना आसान नहीं है. मार्केट्स बिल्कुल आपके रेंज में एंड होना चाहिए, एंड ड्यूरिंग आवर मार्केट आवर्स वी शुड नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज़. अगर मार्केट में फिर से कुछ बड़ा बैड न्यूज़ आ जाता है, देन अगेन द मार्केट्स विल बी हेडिंग ओवरनाइट विद अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, एंड देन द ऑप्शन राइटर्स विल नॉट बी विलिंग टू सेल द ऑप्शंस, एंड फाइनल आवर में इनफैक्ट वी माइट बी एबल टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ स्पाइक बाय द एंड ऑफ द डे. ठीक है. सो प्राइस एक्शन की ट्रेड्स की अगर बात करें तो कल के लिए मेरा जो अप्रोच रहेगा थोड़ा वेट एंड वॉच काइंड ऑफ अप्रोच रहेगा, बिकॉज टुमारो द मार्केट्स आर ओपनिंग विद अ गैप डाउन, करेक्ट. दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग बिकॉज गिफ्ट निफ्टी इज इंडिकेटिंग 150-200 पॉइंट ऑफ गैप डाउन. सो मोस्ट प्रॉब्ली 22,600 या 22,500 के बीच यहाँ पे कहीं पे खुलने वाला है मार्केट. सो दैट मेक्स yesterday's जो हाई था 22,800 विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, एंड जो
सपोर्ट है वो मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है समवेयर अराउंड 22,370 22,400 लेवल्स. सो अगर मार्केट इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में होवर किया, वेल एंड गुड, आपको थोड़ा बहुत मतलब एक राहत मिलने वाली है. बट इफ द मार्केट स्टार्ट स्लाइडिंग बिलो दिस, अगेन विल बी हैविंग अ वाइड रेंज काइंड ऑफ अ डे. कल के भी अगर दिन को देखते हैं तो इट इज़ अ 600 पॉइंट वाइड रेंज डे, एंड यहाँ पे वी हैव टू गिव मार्केट अनदर डे फॉर द प्राइस एक्शन टू डेवलप. तो कल के लिए मोस्ट प्रॉब्ली आई विल नॉट बी ट्रेडिंग एनी अदर लेवल्स अपार्ट फ्रॉम दिस हाई 22,800 एंड प्रॉबली 22,300 लेवल्स. सो 22,300 एंड 22,800 लेवल्स पे ही मैं मीन रिवर्शन ट्रेड्स लेने वाला हूँ इफ द मार्केट ओपन्स विद इन दिस रेंज. बट आज के दिन आज के रात को अगर कुछ बड़ा वाला कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है या पॉजिटिव न्यूज़ आता है, एंड सडनली इफ वी ओपन विद अ मैसिव गैप अप और अ मैसिव गैप डाउन, देन सेम थिंग, फर्स्ट 45 मिनट्स के लिए हमको वेट करना पड़ेगा. एंड सिंस टुमारो इज नॉट एन एक्सपायरी, इट्स गोना गेट अ लिटिल ट्रिकी फॉर द ट्रेडर्स टू एक्चुअली ट्रेड, बिकॉज अगर आप ऑप्शन बाई भी करोगे तो देन द मार्केट्स माइट नॉट गिव सच एन एक्सटेंडेड मूव एंड आपका बैंक फॉर द बक नहीं मिलने वाला है. एंड इवन इफ यू सेल द ऑप्शंस, आपको इतना ज़्यादा क्रश नहीं मिलने वाला है. एंड इन स्पाइट ऑफ मार्केट्स गिविंग मूव्स इन योर डायरेक्शन, द प्रॉफिट्स वुड नॉट बी दैट ग्रेट. सो मैं ज़्यादातर कल के ट्रेडिंग ज़्यादा अवॉइड ही करना पसंद करूंगा. बट इफ वन वर टू ट्रेड, अगर कोई किसी को ट्रेड करना ही है, देन ओनली ट्रेड एट दीज लेवल 22,300 लेवल एंड 22,800 लेवल. इसके बीच में आप कोई ट्रेड्स मत लो. दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़रूर स्विंग्स नज़र आ रहा होगा, बट हाउ मच ऑफ द पावर दी स्विंग्स होल्ड एंड मार्केट इस स्विंग्स को रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, नोबडी नोस. ठीक है, यू कैन यूज CPR ऑल्सो टुमारो, बिकॉज कल के लिए जो CPR है समवेयर अराउंड यहाँ पे आएगा 22,450 के आसपास. बट अगेन इट्स गोना बी अ वाइड CPR, बिकॉज कल का जो दिन था वो काफ़ी वाइड रेंज था, तो कल के लिए एक वाइड CPR बनने वाला है. तो बेसिकली यहाँ पे भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है आपके फेवर में नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ दिस वाइडनेस. आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंड आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है नहीं, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पे इस रेंज के बीच में ओपन होगा तो मार्केट हैज़ गॉट नॉट मच ऑफ द डेल्टा बैंड्स टू एक्चुअली मूव. ठीक है, सो मार्केट्स यहाँ पे खुलेगा बीच में, तो देन शॉर्ट द मार्केट्स एट 22,800 विद अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस एंड पोटेंशियली 1:2 काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड. एंड इफ द मार्केट कम्स टू समवेयर अराउंड 22,300 लेवल्स, देन गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स. बट यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए वेट फॉर द पैटर्न, से डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न या एनगल्फिंग कैंडल काइंड ऑफ अ पैटर्न आने दो लोअर टाइम फ्रेम पे, एंड देन ओनली स्टार्ट ट्रेडिंग. बट यहाँ पे मैं पैटर्न्स के लिए मैं वेट नहीं करूंगा. आई एम ओके टू शॉर्ट द मार्केट इन अदरवाइज वॉट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट. तो यहाँ पे मैं पैटर्न्स के लिए नहीं करूंगा, बिकॉज पैटर्न्स के लिए वेट करेंगे तो थोड़ा हमारा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ लेवल बेस्ड पे ही मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूंगा. बट ऑफ कोर्स एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए. अगर मार्केट यहाँ से ब्रीच होगा देन मोस्ट प्रोबेबली 23,000 लेवल्स को भी टच करने का प्रोबेबिलिटी है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, टुमारो लेट्स give the market a fresh area, the fresh zone to actually form another range, because Monday कल 1DT है एंड उसके बाद निफ्टी का एक्सपायरी आने वाला है, एंड एक्सपायरी के लिए हमारे पास एक डिफाइंड रेंज होना चाहिए. एंड मोस्ट प्रोबेबली कल वो रेंज फॉर्म होने वाला है. लेट्स से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देन मार्केट थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, एंड यहाँ पे ऐसे रेंज फॉर्म हो गया ना, तो देन वी कैन टेक दिस रेंज फॉर द एक्सपायरी एंड प्ले बाय दिस रेंज. बट यहाँ पे इतना बड़ा रेंज को प्ले करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऑन अ नॉन एक्सपायरी डे. सो टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आई लेट द मार्केट्स प्ले आउट इट्स प्राइस एक्शन, एंड किसी को 100% ट्रेड करना ही है, देन शॉर्ट एट दिस लेवल, long at this level, only mean reversion trades. Don't go for any trend following trades tomorrow, because market constantly trend followers को पैसे दे रहा है intraday में. And yeah, that's about it, and I'll see you again tomorrow after the market section. Till then, take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.